Yeah, everyone. Good morning. Guys, am I audible? Yes. Fine. Okay, so guys, let me know if you have any query. कुछ पूछना है? So I have shown you how we can create our account in Salesforce, how we can create user inside Salesforce, and what we are in the Salesforce. We are system admin in the Salesforce, and what are the powers and priorities we have. अगर आपको कोई doubt हो, you can say. Everyone. Come on, yes or no? Just give me a confirmation ताकि अपन आगे बढ़े. No, sir. Yeah. Thank you. So guys, I can see some of the screenshots, but I cannot see all the screenshots. So guys, again I am saying it's the initial days. अगर आप अभी अगर Salesforce में time नहीं देंगे फिर क्या फायदा? So please try to complete the you can say assignments that I am providing you. अपने screenshot share करो. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. Now the first thing that we are going to learn is application. कि हम application कैसे develop करते हैं? Because if you can go for the Google App Launcher, you can see for Google App Launcher here we have multiple applications you can see, right? Now inside Salesforce also, if we want to create our application, we can go and create. So that is our app launcher, Salesforce App Launcher. Once I click on this Salesforce App Launcher, यहाँ पे मुझे Salesforce के सारे एप्लीकेशन दिखेंगे. ये तो वो सारे एप्लीकेशन जो Salesforce ने बना के दिया है, हमने नहीं बनाया. That Salesforce has developed all these applications. But let's take example. My client is expecting they are not going to use the Salesforce application. They are expecting to create custom application. It means क्या चाहिए Salesforce client ने क्या बोला कि मुझे Salesforce का application use नहीं करना. We have to create our own application. लेट्स एग्जांपल आपसे रेडिकल खुद कनेक्ट करती है. रेडिकल बोलती है कि मुझे एज अ डेवलपर आई हैव टू डेवलप, कैन यू डेवलप ए एप्लीकेशन फॉर मी? ऑफ कोर्स फॉर रेडिकल आल्सो वी कैन डेवलप ए एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन कोई सा भी हो, इट्स द सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो. सो उसके लिए हम कहाँ जाना पड़ेगा? वी हैव टू गो फॉर सेटअप. ओके, लेट मी ओपन द पेन. पैरेलली मैं आपको नोट डाउन भी कर दूं ताकि आपको याद रहे. गाइस एवरीवन, कोडिंग नहीं है, बट स्टिल वी हैव सम स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो. App creation. Now steps, first we have to go for setup, then we have to search. क्या search करना होगा? App manager. You have to search for app manager. Fine. Then what you have to go? Then you have to click on this new lightning app. Okay, then we have to go and new lightning app, you can click on that, then fill all details, then go for next, then add your object, add your profiles, then again next, then add what? Add objects, and then next and save it. ये स्टेप्स है. कोई अब सपोज अगर कोड नहीं याद रखना, कुछ स्टेप्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे. डोंट वरी, ये तो मैंने लिखा है, बट आप इस चीज को आप फॉलो करोगे ना तो आपको मिले. सो फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर सेटअप. वी आर इन द सेटअप फेज. उसको मुझे क्या सर्च करना है? वी हैव टू सर्च ऐप मैनेजर. सो आई कैन सर्च हियर app स्पेस मैनेजर. आई कैन सर्च फॉर ऐप मैनेजर. मुझे ऑप्शन आ जाएगा ऐप मैनेजर का. I can click on my app manager. और यहाँ पे आपको you can see next option क्या है? New lightning app. Obvious here we have a button with new lightning app. We can click on this क्योंकि मुझे नया ऐप बनाना है. So let's click on this new lightning app. मुझे ऐप बनाना है, let's say radical case. I can provide radical technologies. मैंने नाम दे दिया radical का, radical technologies. Fine. मैंने यहाँ पे डेवलपर नेम में वही डाल दिया, ऑटोमेटिक आ जाता है वो, डोंट वरी. इमेज इज ब्रांडिंग. इट मींस लोगो. ऑब्वियस सी बात है, हर एक एप्लीकेशन का एक लोगो होता है. अगर रेडिकल के पास भी अपना लोगो है, सो आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो,
रेडिकल के इमेज को जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया इन माय सिस्टम आई हैव, सो आई कैन क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पे आई थिंक समवेयर ऑन डेस्कटॉप स्पोर्ट्स, लेट मी चेक. So here we have lots of images. मेरे पास radical किसी, here we have radical images. I can take it. So वो आपका इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा radical का इमेज. Radical image. It's a branding. या वही अभी बहुत छोटा आ रहा है, but don't worry, आप इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा ले लोगे. That will be uploaded. So जैसे इमेज अपलोड होगा यहाँ पे ऐसे इमेज आ जाएगा. You can see. ये आपका एप्लीकेशन का नाम और ये आपका इमेज. आपको कुछ और इमेज लेना है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो. Radical image. Radical technology image. Fine. Go for images and here we have lots of images. See. Fine. आप ये ले लो, इसको आप सेव कर लो. Fine. I can just add it here. मैं इसमें ही ऐड कर लेता हूँ. I can provide radical 2 इसके अंदर. Save it now. आप यहाँ से भी चाहो कोई दूसरा इमेज ले सकते हो. You have to just clear it. क्लिक करो फिर से अपलोड पे. I can go for desktop, I can go for cars, and here we have some images. Radical images कहाँ हैं? Can you see everyone? Radical this here we have. I can click on that. See, it is uploaded. So जैसे ही अपलोड हुआ ये इमेज आपको यहाँ भी दिख जाएगा. So different types of images we have. It's a branding, you can say, it's a logo, you can say. तो ये आपका radical का logo आ गया और यहाँ पे radical आपके radical technology institute का नाम. Now यहाँ पे you can provide your description also that IT trainings. IT trainings provided. At any explanation. So here we have जो भी आप लिखोगे, here we have it is available. IT trainings provided. Now then go for next. Next what I told you, इसके बाद क्या करना है अपने को, fill के बाद details का next. राइट आपको नेक्स्ट करना है. नथिंग यू हैव टू चेंज बिकॉज एवरीथिंग इज फिक्स्ड. बिकॉज हमें चाहिए कि जो एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप और फोन के लिए यूज होना चाहिए. एज ए डेवलपर हमें फुल एक्सेस चाहिए. सो जस्ट गो फॉर नेक्स्ट एंड हियर इट्स द सेम पेज विल गेट इट. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट. नाउ यहाँ पे इट इज आस्किंग टू ऐड व्हाट ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे ये बोल रहा है दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड. सेल्सफोर्स ने दिया हुआ ऑब्जेक्ट है. सेल्सफोर्स कहता है क्या कि आप अपने खुद के ऐप बनाते हो, दैट इज फाइन, आप बना लो. बट अगर आप अपने ऐप में मेरे ऑब्जेक्ट्स को यूज करना चाहते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो. इट्स नॉट चार्जेबल, इट्स फ्रीली यू कैन यूज इट. सो लेट्स टेक कंपैरिजन के लिए हम देखेंगे. आई कैन टेक, लेट्स टेक, मैंने एक होम टैब ले लिया. आई हैव टेकन अ होम टैब फ्रॉम द सेल्सफोर्स साइड. मैंने एक ले लिया, लेट्स टेक हियर वी हैव लीड ले लिया मैंने फ्रॉम सेल्सफोर्स साइड. फाइन. एंड मैंने एक ले लिया व्हाट अकाउंट ले लिया मैंने फ्रॉम सेल्स. दैट्स इट. मैंने ऐसे ले लिया 3 ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा पाऊंगा. फाइन. सो ये 3 ऑब्जेक्ट मैंने सेल्सफोर्स के साइड से ले लिए. रेस्ट मैं अपना खुद का बनाऊंगा एज अ डेवलपर. नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट. नाउ अब ये पूछ रहा है किस प्रोफाइल को एक्सेस देना है. सो गाइज व्हाट प्रोफाइल्स वी बिलोंग्स टू एवरीवन. कल ही हमने देखा है. कम ऑन, हम किस प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं? Administrator. So you can see here we have lots of profile and here also we have what system administrator. So what we have to do, यहाँ पे आप सर्च भी करोगे system admin, you will get that and we have to add. पहले हमें खुद को access देना पड़ेगा ना. Whatever the functionality we are developing, first we have to provide access to ourselves. पहले हमें खुद को access देना है. Fine. इसके अलावा अगर आप चाहते हो, मैंने आशीष को बनाया है, आशीष को मैंने सॉल्यूशन मैनेजर दिया. अगर आप आशीष को भी एक्सेस देना चाहते हो तो यू कैन ऐड हियर सॉल्यूशन मैनेजर. बट करेंटली मैंने आशीष को नहीं दिया बिकॉज अभी एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि आशीष देखे. तो आई कैन लॉग इन एज सिस्टम एडमिन. आई कैन गो फॉर सेव एंड फिनिश. से मैंने केवल सिस्टम एडमिन को एक्सेस दिया है एंड आई क्लिक्ड ऑन दैट सेव एंड फिनिश. वंस आई क्लिक ऑन दिस सेव एंड फिनिश, you can see here, you can see, do we have any radical? Yes, you can see here radical technology app is created जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था IT training provided. Fine, हमने ऐप तो बना लिया, but can I see my app here? So of course, अब आप अपने ऐप लॉन्चर पे, कैसे गूगल में जाके आप ऐप लॉन्चर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे भी अपने ऐप लॉन्चर पे क्लिक करो and search your application. What? Radical. See, you are getting your application name, Radical Technologies. Click on your application. So your application will be open
with the logo Radical Technology, and here is the application you have. इस एप्लीकेशन में हमने तीन नाम लिए, तीन ऑब्जेक्ट लिए थे, होम, लीड एंड अकाउंट्स. So these three are the objects we have taken, and you can see that is available on my UI. So guys, it's a first step. How can we create a custom application for my clients? Everyone, let me know if you have any query till here. Come on, it's बहुत easy है ये. It's not too tough. It's just a step. Okay, everyone. Come on. If you have any query, you can say clearly, guys. No, sir. Fine. See, without any code, we have developed the application. Lots of functionality we are going to develop. मैंने बोला ना कि हम बिना कोड के 80% functionality we are going to develop it. And I will show you. Don't worry. Step by step, we'll see everything. और rest of the 10 to 15% we have to know the code. See guys, अगर आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में जाते हैं जिसके अंदर कोड जीरो है ना, तो दैट इज आपके फ्यूचर के लिए वो सही नहीं. क्यों? क्योंकि नॉन कोडिंग एरिया कोई भी इजीली सीख सकता है, और कभी भी नॉन कोडिंग एरिया में जब रिसेशन आते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है भाई वो नॉन कोडिंग एरिया कोई इंटरनल बंदा भी कर सकता है. बट आपको ऐसा करना है कि 80% यू शुड नो नॉन कोडिंग एरिया और 20% कोड भी है, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है बनी रहे किसी भी कंपनी में जाओगे तो. सी अब सबको ऐसा नहीं है कि आपको एक बार जॉब मिल गया और वो हमेशा अगर आपको जॉब वो कंटिन्यू रखना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी देना होगा. फाइन. सो अभी ऑब्वियसली बात है, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है पूरे कोडिंग का 100% कोड करने में, तो आई हैव चूज दैट सेल्सफोर्स जिसके अंदर 80% फंक्शनलिटी विदाउट कोड एंड 20% फंक्शनलिटी वी हैव द कोड. और वो भी वैसा कोड है जो वी हैव टू कॉपी एंड पेस्ट ओनली. उसके लिए हमें कुछ याद भी नहीं रखना है. विल सी इन द डेवलपमेंट आल्सो, डोंट वरी. बट currently till here, if you have any query you can say. Okay, no query. Now इसके बाद मुझे क्या करना है? So here I have to create a object. Obviously बात है, रेडिकल टेक्नोलॉजी क्या है? IT की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है. तो IT की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो मुझे क्या चाहिए? ऑब्वियसली बात है, रेडिकल में कौन आते हैं? स्टूडेंट्स आते हैं. वो रजिस्टर करते हैं. आप मे बी सेल्सफोर्स के लिए, मे बी जावा के लिए, मे बी .NET के लिए, मे बी पाइथन के लिए, राइट? दे हैव लॉट्स ऑफ कोर्सेज दे आर प्रोवाइडिंग. तो ऑब्वियसली बात है, जो भी स्टूडेंट आएंगे तो उनसे उनका वो डिटेल्स तो लेंगे ना, स्टूडेंट का नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट, और उसने कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया. ईच एंड एवरी डिटेल विल बी मेंटेन्ड हियर. फाइन. सो उसके लिए लेट्स क्रिएट ए ऑब्जेक्ट विद द नेम ऑफ स्टूडेंट. Let's create a object with the name of student. और ताकि जब भी कोई स्टूडेंट आए इंक्वायरी के लिए, so we can take their data. We can take, obviously रेडिकल पहले वही करती है, पहले उसका डेटा लेती है, then further वो चाहे तो कॉल कर सकते हैं. So let's create a object. These all are the objects. So यहाँ पे हम जो भी बनाएंगे they will be the object. तो अकाउंट्स के बगल में यहाँ पे here just besides account we have to create a object with the name of students, जहां से हम स्टूडेंट्स के डिटेल ले पाए. ओके एवरीवन, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए. सी गाइस, कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, अगर रिक्वायरमेंट क्लियर है ना, तो आपको डेवलपमेंट में बहुत आसानी होती है. इजीली यू कैन डेवलप इट. लेकिन कब? जब आपका रिक्वायरमेंट क्लियर हो. और रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या बनाना है, तो फिर ऑब्वियसली डेवलप क्या करोगे आप? क्लियर है व्हाट वी आर गोइंग टू डू एवरीवन? कम ऑन, यस और नो? यस. तो चलो सीखते हैं हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दो प्रोसेस है. इफ आई विल गो फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, टू प्रोसेस वी हैव. पहले को हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन मेथड. तो मेरे को भी पसंद नहीं है, इट्स अ लॉन्ग मेथड, बट सीखना है. इट्स अ नेविगेशन मेथड. सेकेंड ऑप्शन क्या है? स्कीमा बिल्डर. इट्स अ शॉर्ट प्रोसेस. तो मैं अपने प्रोजेक्ट में फॉलो करता हूँ. नेविगेशन मेथड से भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और स्कीमा बिल्डर से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. दोनों ही हम देखेंगे वन बाय वन, डोंट वरी. फाइन. सो फर्स्ट विल सी द नेविगेशन मेथड. सो हाउ विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन मेथड, इससे हम क्या कर सकते हैं एवरीवन? लेट मी राइट इट डाउन. वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स. बोथ, दोनों ही बना सकते हैं हम. वी कैन ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएट एंड फील्ड, दोनों बना सकते हैं. सेम थिंग, ये जो आप इससे कर रहे हैं ना, वही काम आप इससे भी कर सकते हो. You can create objects and fields. अब आप बोलोगे सर डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, विल सी.
व्हाट इज द डिफरेंस हियर वी हैव, बट आई विल शो यू. बट मैं ऑनेस्टली क्या फॉलो करता है प्रोजेक्ट में, ऑल नॉट मी, इट्स एवरी डेवलपर, बिकॉज जो हमें आसान होता है वही हम फॉलो करते हैं. ये आपका लॉन्ग प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस है. तो हम क्या करते हैं जनरली, मैं क्या करता हूं, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं मैं, ऑब्जेक्ट दैट इज वाया नेविगेशन. लेकिन जो फील्ड्स क्रिएट करता हूं मैं, दैट इज वाया स्कीमा बिल्डर. ये प्रोसेस मैं फॉलो करता हूं, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स यही फॉलो करते हैं. इससे क्या होता है, इजी हो जाता है. बट सी, लेट मी शो यू. So I can go for the navigation method first. Let's see with the help of navigation method how we can create an object. So for navigation method, where we have to go? First we have to go for setup. Then we have to go for object manager. Object manager. Fine. Once you are in the object manager, then you have to go. What? Create. Then we have to go for create custom object, and then fill all details, and then save it. Then save it. Fine. चलो करते हैं ये. So first we have to go for setup, then object manager. So let's go there. So object create करना है तो सबसे पहले हम जाएंगे setup पे. ठीक है, चलते हैं setup पे. Here we have the setup option. Then we can go for object manager. So here we have the option object manager. You can see here, that is, here we have object manager. I can click on this object manager. जब object manager जाएंगे तो यहाँ पे क्या option मिलेगा मेरे को? Create का option मिलेगा. Do we have create? Yes, here we have the create option. I can click on that. और यहाँ पे आ रहा है what? Custom object. So I can click on this custom object. And once I have clicked on this custom object, just we have to fill the details. कि आपको किसके नाम से ऑब्जेक्ट, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स. आप कैंडिडेट्स भी ले सकते हो, स्टूडेंट भी ले सकते हो. आई कैन टेक स्टूडेंट, प्लूरल आई कैन टेक हियर स्टूडेंट्स, इट्स प्लूरल. Fine. Now here we have record name. So guys, it's an important interview question they used to ask कि जब हम object create कर रहे होते हैं, at that time Salesforce will provide two data types. कौन से हैं? That is text and auto number. ये दो by default data type है, that will be provided at the time of object creation. तो ये याद होना चाहिए आपको. ये कभी-कभी इंटरव्यू में पूछते, इवन मुझसे अभी भी पूछते हैं कभी-कभी कि कौन से डिफॉल्ट डेटा टाइप है जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है. इट्स अ टेक्स्ट एंड ऑटो नंबर. फाइन. अब टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? आपको स्टूडेंट का नाम चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है तो क्या चाहिए होता है हमें? स्टूडेंट की एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट होती है. तो उसके लिए आई कैन टेक व्हाट? ऑटो नंबर. इनसाइड ऑटो नंबर वी कैन प्रोवाइड व्हाट? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी. आई हैव गिवन द नेम student registration ID, and I can provide here registration ID, and I can provide some here curly bracket. I can take it, provide some zeros. This format you can see यहाँ पे दिया example में format दिया हुआ है. I can take this format, same format मैंने लिया, और I can start with the registration with any random number. कोई भी मैंने एक random number दे दिया, आप 1 भी दे सकते हो. मैंने कोई भी एक random number दिया, यहाँ से registration start हो जाएगा. Okay. Next, we have to enable allow report, allow activities, track field history, and allowing chatter groups. It means ये सब फ्यूचर के लिए है कि कल को मुझे चेक करना है कि लास्ट 6 मंथ में मेरे कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, लास्ट के 3 मंथ में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए. सो उसके लिए वी हैव टू गो, हमें रिपोर्ट क्रिएट करना होगा. सो दैट्स वाई हम एनेबल कर दे रहे हैं अलाउ रिपोर्टिंग ऑप्शन. कि कल को 6 महीने बाद अगर मुझे निकालना हुआ कि मुझे लास्ट के 2 महीने में कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है. ऑब्वियसली बात है ना, रेडिकल इज आल्सो डूइंग अ बिजनेस, राइट? वो भी एक बिजनेस ही कर रही है, तो उनको चेक करना पड़ेगा ना कि लास्ट के 1 मंथ में कितना बिजनेस हुआ, लास्ट के 2 मंथ में कितने बिजनेस हुए. तो उसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ रिपोर्ट. सो फॉर दैट आई हैव एनेबल्ड इट. एक्टिविटीज एंड ट्रैक फील्ड हिस्ट्री. ये क्या होता है? किसी ने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड को डिटेल को चेंज किया. सपोज आपने पे किया था समथिंग 20,000,
आपने 20,000 रेडिकल को पे किया सेल्स फोर्स के लिए, लेकिन रेडिकल के सिस्टम में दिखा रहा है 15,000। मतलब किसी ने आपके रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया, आपने तो पे किया 20,000, बट रेडिकल के सिस्टम में 15,000 किसने अपडेट किया। तो उस चीज को भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी ने डेटा को मॉडिफाई किया होगा। सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव एक्टिविटीज एंड ट्रैक फील्ड हिस्ट्री। चैटर ग्रुप क्या है? चैटर ग्रुप इज जस्ट लाइक ए फेसबुक। कैसे फेसबुक पे हम चैटिंग करते हैं, हमने कुछ भी एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट के ऊपर लोग अपने कमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली हियर वी हैव द चैटर ग्रुप। सो डोंट वरी, विल सी द चैटर ग्रुप आल्सो। सो गाइस, इन चारों को समझने में कोई डाउट है, यू कैन आस्क अगेन, एनीवन? डोंट वरी, इसके बारे में हम अभी सेपरेट सेशन भी होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन से। ओके, नो क्वेरी, फाइन। देन हियर वी हैव, ये आपका शेयरिंग है सिक्योरिटी के लिए, बाय डिफॉल्ट ये एनेबल रहता है, इसको एनेबल रहने दो। इसको हम आगे पढ़ेंगे सिक्योरिटी मॉडल में कि एग्जैक्टली होता क्या है सिक्योरिटी मॉडल में, शेयरिंग क्या होता है, बल्क एक्सेस क्या होता है, राइट? इसको हम आगे देखेंगे। देन हियर वी हैव डिप्लॉयमेंट स्टेटस। बाय डिफॉल्ट डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड ही रहने देना है, बिकॉज अगर आप इन डेवलपमेंट डालते हो ना तो मतलब ये आपको किसी को दिखेगा नहीं, मतलब अभी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलप हुआ नहीं है। बट डोंट वरी, अभी हमने एक्सेस केवल सिस्टम एडमिन को दिया है, सो वी कैन मेक इट डिप्लॉयड ओनली। Then let's go for allow search. ये क्या होता है allow search? Fine, everyone, आप सबने देखा है फ्लिपकार्ट में, अगर आप फ्लिपकार्ट में देखोगे कभी इनके पास एक दिवाली सेल आता है, कभी क्रिसमस के सेल आते हैं। तो जो प्रोडक्ट आप दिवाली से पहले देख रहे थे, आपको उस क्रिसमस के जो प्रोडक्ट आप क्रिसमस सेल से पहले देख रहे थे, वो प्रोडक्ट क्रिसमस के सेल के टाइम अवेलेबल नहीं होता है कभी कभी। एवरीवन हैज सीन, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही वो शो करते हैं जो अपना जिनको उनको स्टॉक निकालना होता है। एवरीवन, सबने देखा है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. राइट। वो क्या होता है, वो वही करते हैं, यहाँ पे जाके इस चेकबॉक्स को डिसेबल करते हैं ताकि आप उसको सर्च भी कर पाओ तो दिखेगा नहीं आपको। दैट इज व्हाट हियर वी हैव। सो जैसे ये अलाउ सर्च क्या करता है, यहां से आपको क्या सर्च करना चाहते हो, ये आपका मेन ग्लोबल सर्च है, जो कि आपके फ्लिपकार्ट में भी है। ये ग्लोबल सर्च, ये वही है ग्लोबल सर्च यहाँ पे, दैट इज द ग्लोबल सर्च। सो इट मीन्स व्हाट, कि आप जो यहां से सर्च कर रहे हो, राइट, अगर उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, आप सर्च कर रहे हो बट वो डेटा है, बट फिर भी वो चाहते कि नहीं आपको वो डेटा ना दिखे। सो दैट इज द ऑप्शन हियर वी हैव अलाउ सर्च। अगर मैंने इसको इनेबल किया तो आप स्टूडेंट का कोई भी डेटा यहां से सर्च कर सकते हो। अगर मैंने इसको डिसेबल कर दिया, राइट, अगर मैंने इसको डिसेबल कर दिया तो आप कितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे, आप यहाँ पे उसके आईडी सर्च नहीं कर सकते। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ अलाउ सर्च, और यही आपके एप्लीकेबल होता है फ्लिपकार्ट मिंत्रा में जब वो डील्स चलते हैं दिवाली के टाइम और मे बी क्रिसमस के टाइम। बट करेंटली एनी हाउ वी हैव टू लर्न, सो वी हैव टू एनेबल इट, ताकि हम कोई भी स्टूडेंट के डेटा यहाँ से हम सर्च कर पाए। फाइन, नाउ देन वी हैव टू गो फॉर ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट। लेट्स से आपको किसी स्टूडेंट का पैन कार्ड या आधार कार्ड आपको एज ए डॉक्यूमेंट के पर्पस में सेव रखना है, तो उसके लिए हमने ले लिया नोट्स एंड अटैचमेंट, कि नहीं मुझे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर करना है, उसके पैन कार्ड्स को, आधार कार्ड्स को, लाइक दैट। सो मैंने इसके लिए एनेबल कर दिया। और लास्ट क्या है, लास्ट इज व्हाट, लॉन्च ए न्यू कस्टम टैब। मतलब आप जो भी ऑब्जेक्ट जो बना रहे हो, ये वाली ऑब्जेक्ट क्या नाम है, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज ए टैब में दिखना चाहिए। सो आई हैव एनेबल दिस ऑप्शन। इसको एनेबल नहीं करोगे तो आपको टैब में नहीं दिखेगा, बट मुझे टैब में शो करना है, दैट्स व्हाई आई हैव एनेबल्ड इट। सो गाइस, here I have filled all the details, I have explained you everything. Let me know if you have any query till now. Come on everyone, यहां तो कुछ पूछना है इस पेज में? Come on, yes or no, just give me a confirmation before save. Oh. Fine, so let's go and save it finally. चलो सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब ये क्या बोल रहा है कि यस स्टूडेंट तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इज क्रिएटेड। अब बोल रहा है कि इसके टैब्स का कलर डिसाइड करो, जो कि कलर आपके केवल क्लासिक में दिखता है, तो यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई कैन टेक ए ब्रिज कलर, कोई भी कलर। देन गो फॉर नेक्स्ट। इट इज आस्किंग फॉर अगेन प्रोफाइल लेवल, प्रोफाइल की बात कर रहा है, एंड वी बिलोंग्स टू सिस्टम एडमिन प्रोफाइल। सो अब देखो सिस्टम एडमिन के लिए क्या है, डिफॉल्ट ऑन है, तो अभी सबके लिए डिफॉल्ट ऑन है। अभी हम
अभी हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ ही नहीं है, सिक्योरिटी का जो सेशन होगा वो सेपरेट है, डोंट वरी, एट दैट टाइम विल सी। बट करेंटली बाय डिफॉल्ट जो है ना सबके लिए ऑन रहने दो, सबके लिए ऑन, बिकॉज अभी हम सिक्योरिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। So let's provide all this on. Let's go for next now. Now here we have what application की, ये सारे एप्लीकेशन के लिस्ट है जो हमने स्टूडेंट बनाया है। एवरीवन, जो मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूं वो कौन से एप्लीकेशन के लिए है? एवरीवन, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, कौन से एप्लीकेशन के लिए है? व्हाट इज एप्लीकेशन? Radical technology. Radical रेडिकल technology. के लिए है। एंड हियर वी हैव द रेडिकल टेक्नोलॉजी। सो जो मैं स्टूडेंट बना रहा हूं वो केवल रेडिकल के लिए, तो अननेसेसरी सब में क्यों ऐड करना है? सब में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। सो आई कैन जस्ट डिसेबल एवरीवन एवरीथिंग, और केवल रेडिकल के अंदर मुझे स्टूडेंट चाहिए, तो आई कैन ऐड इट हियर कि नहीं, वो जो मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूं वो मुझे केवल रेडिकल के अंदर चाहिए, बाकी किसी में नहीं चाहिए। आई हैव एडेड हियर एंड लेट्स गो फॉर सेव इट। फाइनली सेव कर लिया हमने। जैसे ही हमने सेव किया, यू कैन सी एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया। एंड हियर वी हैव, ये हम आगे देखेंगे क्या है ये सारे ऑप्शंस। बट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, लेकिन क्या वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एज ए टैब में दिखेगा? यहाँ पे दिखना चाहिए। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। और कभी भी रिफ्रेश करना ना एवरीवन, तो कैशे क्लीन, कैशे केवल यहां से रिफ्रेश मत करना, कंट्रोल F5 या फंक्शन F, किसी लैपटॉप में फंक्शन F5 चलता है और किसी लैपटॉप में कंट्रोल F5 से। तो कंट्रोल F5 से क्या होता है ना कि आपसे जो ब्राउजर के जो कैशे होते हैं ना, कैशे वो भी क्लीन हो जाते हैं। एंड यू कैन सी हियर द ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल नाउ। सो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, सी ये तीनों ऑब्जेक्ट बनाया है सेल्सफोर्स ने, और ये बनाया आपने। कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? नो, इट्स लुक लाइक सिमिलर। सो हियर वी हैव द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यहां आपका अकाउंट ऑब्जेक्ट, ये सेल्सफोर्स ने बनाया था और ये आपने बनाया। एवरीवन, एनी क्वेश्चन, एनीवन टिल हियर? कम ऑन, यस और नो? How can we create a object inside Salesforce? If you have any doubt, let me know. No, sir. No. Very good. सर स्प्रेडशीट से भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पे ऑप्शन था ना? Of course, स्प्रेडशीट से भी, बट स्प्रेडशीट से जनरली हम करते नहीं है। बिकॉज क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स जो है ना, क्लाइंट्स आपको एक बार में सारी रिक्वायरमेंट नहीं देते। एग्जैक्टली यहाँ पे तो स्प्रेडशीट से दिया है ना, बट उससे हम कभी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, क्लाइंट्स ने बोला कि आज कि ठीक है मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में 10 फील्ड है, आपने बना दिया। फिर क्लाइंट आया, फिर बोला कि नहीं मुझे उसमें और 5 फील्ड ऐड करने हैं। फिर आप अभी स्प्रेडशीट तो नहीं यूज करोगे, आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइंट कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओगे ना, तो आपको कभी भी आप देखोगे आपका जो डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको 10 दिन में डेवलप कर लो। उसके लिए आपको 6 महीने, 8 महीने, साल भर लग जाते हैं डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स बार बार सोचता है, फिर रिक्वायरमेंट चेंज करता है, फिर थोड़ा सोचेगा, फिर रिक्वायरमेंट चेंज करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अब एक स्प्रेडशीट तो आप एक बार ही यूज करोगे, बार बार तो यूज कर नहीं सकते। सो बार बार आप कौन सा जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया, आप ये प्रोसेस आपको बार बार फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? Okay. And what about new connected app besides like new Lightning app वो option? बहुत दूर की बात है। वो जब आप डेवलपमेंट में प्रो हो जाओगे, Okay. कोडिंग में, तब आप Okay. उसको, वो कनेक्शन है आपके दूसरे एप्लीकेशन से। ठीक है ना? Okay. सेल्सफोर्स को यूट्यूब से कनेक्ट करना है, सेल्सफोर्स को फेसबुक से कनेक्ट करना है, तब वो यूज में आता है। ठीक है? Okay. तो उसके लिए पूरी Thank you. कोडिंग करनी होती है। डोंट वरी। फाइन फाइन। सो यहाँ पे आते हैं अपन ये ऑप्शन के पास। अभी आगे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के पास। सो ये आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको ऑब्जेक्ट तो सिमिलर दिख रहा है कि चलो ये आपका कस्टमर, ये स्टैंडर्ड है, ये कस्टमर हमने बनाया है। बट अगर आपको डिफरेंस जानना है एवरीवन, बिकॉज बहुत लोग क्या होता है डिफरेंस नहीं जान पाते हैं। सपोज मान लो आपके पास बहुत, अभी आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, उसमें ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रहा है, अब बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अभी आपको पता ही नहीं है कौन सा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन सा सेल्सफोर्स ने बनाया है, कौन सा डेवलपर ने बनाया है। सो आइडेंटिफिकेशन का एक ही प्रोसेस है कि जो कस्टम वाला ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके पास अंडरस्कोर सी लगा होगा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आपका स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, सेल्सफोर्स ने दिया है स्टैंडर्ड का होगा, तो स्टैंडर्ड का नाम सेम होगा, सेम ऑब्जेक्ट नेम, फाइन। लेकिन जो आपके कस्टम ऑब्जेक्ट होंगे, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट नेम होगा जो आपका रहेगा, लेकिन जो आपका कस्टम ऑब्जेक्ट होगा ना, जो भी नाम होगा उसके लास्ट में
Lastly, it will be underscore underscore C, ये लगा होगा. Let me show you. तब आपको क्लियर होगा. Let me show you this. कि how can you identify standard and custom object, guys? It's very simple, बहुत easy है ये. उसके लिए क्या करेंगे हम? See, अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैंने सेटअप पे क्लिक किया, मैंने सेटअप पे किया, मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मैनेजर में. ऑब्जेक्ट मैनेजर में सी अकाउंट का एपीआई नेम क्या है एवरीवन? कैन यू सी क्या है? सेम अकाउंट ही है, और यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे अगर आप अपने जाओगे कहां पे, जो अपने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, स्टूडेंट, कैन यू सी क्या आ गया आगे एवरीवन? अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी. और अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी का मतलब क्या है? इट्स ए कस्टम ऑब्जेक्ट. सो कभी भी अगर आप कोड भी देखते हो, कोड में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लिखा है, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये डेवलपर्स ने बनाया है, ये सेल्सफोर्स ने नहीं दिया. इट्स ए कस्टम ऑब्जेक्ट. दैट इज द डिफरेंस. आप इजीली पहचान सकते हो. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का नाम सेम नाम रहेगा, बट कस्टम ऑब्जेक्ट के नाम में लास्ट में अंडरस्कोर सी लग जाएगा. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अभी आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. अभी आप देखोगे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इट्स वेरी गुड. अब बात आती है फील्ड्स की. अब फील्ड्स क्या होता है? तो वन साइड क्लिक ऑन सी अकाउंट है, ये सेल्सफोर्स ने बनाया, मैंने नहीं बनाया. अकाउंट पे पास क्या है? न्यू बटन है. आप स्टूडेंट के पास आओगे जो हमने बनाया है, उसके पास भी न्यू बटन है. दोनों के पास न्यू बटन है. अकाउंट के पास जाओगे, सेल्सफोर्स ने बनाया, इसके पास भी न्यू बटन है. हमने स्टूडेंट बनाया है, इसके पास भी ऑटोमेटिक न्यू बटन है. लेकिन जब अकाउंट के न्यू बटन पे आप क्लिक करते हो, यू कैन सी ए फॉर्म पेज. इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल पेज, जिसके अंदर आप सारे डिटेल्स को फिल करोगे. ऑब्वियस सी बात है, इट्स डेवलप्ड बाय सेल्सफोर्स. फाइन. लेकिन अगर आप स्टूडेंट पे जाते हो और यहां पे न्यू बटन पे क्लिक करते हो, यू कैन सी हियर आई कैन नॉट सी एनीथिंग. इट्स ए ब्लैंक पेज. यहाँ पे आई कैन सी ओनली स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड आई कैन सी ए ओनर. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं है. Nothing here we have. Now from here we have to start developing fields. Everyone, technical name याद होने चाहिए. इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? दिस ऑल आर द फील्ड्स. ये सब फील्ड्स हैं. ये सारे के सारे सब के सब फील्ड्स हैं. So guys, technical name याद रहेगा everyone? So now we are going to see how we can create fields. So for creation of fields, let me go there. Okay. And let's create field. कैसे create करते हैं? We are going to see. Fine. So for field creation of fields. Creation of fields. So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे फील्ड क्रिएट करना होता है, मैं स्कीमा बिल्डर यूज करूंगा, बिकॉज बहुत इजी और क्विकली हो जाएगा. बिकॉज अब एक बात बताओ, आप अगर आप नेविगेशन मेथड से इतने सारे फील्ड्स क्रिएट करोगे, बार बार नेक्स्ट 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 सेव, फिर नेक्स्ट 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 सेव, फिर नेक्स्ट 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 सेव, तो अगर आपको 50 फील्ड्स बनाने तो ज्यादा टाइम लग जाएगा. राइट. सो इट्स ए बेटर, इससे वही फील्ड को जल्दी बनाने के लिए व्हाट आई कैन यूज स्कीमा बिल्डर. So can we use schema builder for field creation, everyone? Come on. Let's learn about the schema builder. Easy है वो भी. So what I can do? I can go there. इसके लिए जाना पड़ेगा आपको setup पे. Then we have to go for object manager. Object manager. Then we have to go for you can say schema builder. Schema builder. Then you have to clear all. पहले clear all करना है आपको, because कुछ हो सकता है कुछ बहुत सारे उसपे ओपन होंगे. So make it clear all, and then go for, let me expand it, setup object manager, schema builder, clear all, and then we can go and create fields. चलो देखते हैं. Same step we'll follow then. Fine. So let's go for setup. So we are in the setup. Now, next thing we have to go for object manager. We can go to object manager. And then here what we have? We have schema builder. So here we have schema builder. Click on that schema builder. Let's click on that.
जब मैंने क्लिक किया आई कैन सी दैट इज द स्कीमा बिल्डर इज नाउ लोडिंग, राइट। अभी आप देखो इसमें बहुत सारी चीजें ओपन है। अगर मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूं, लेट मी शो यू, सी देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट, जो आपको भी देख के बहुत कंफ्यूजन होगा कि क्या है इतनी सारी चीजें। दिस ऑल आर द ऑब्वियस, डोंट वरी, बट ये सब चीजें देख के आप डर जाओ, बट फाइन। इसीलिए मैंने लिखा क्या यहाँ पे आगे, सबसे पहले क्या करना है, क्लियर ऑल करना, बिकॉज बहुत सारे अननेसेसरी चीजें वहां पे ओपन होंगी। सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है, क्लियर ऑल, क्लिक ऑन दैट क्लियर ऑल, ये पूरा क्लीन हो जाएगा, क्लियर ऑल, फाइन। इसके बाद क्या करना है अपने को, आई हैव टू सर्च, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, सो आई कैन सर्च हियर स्टूडेंट, आई कैन सी हियर स्टूडेंट जो मैंने बनाया था। इसके चेकबॉक्स को इनेबल कर लो, जैसे इनेबल करोगे यू कैन सी यहाँ पे कुछ आपको ये कुछ फेड हुआ आ रहा है। लेट मी सी, मैंने इसको फिर से डिसेबल किया, यहाँ पे गायब हो गया, फिर से मैं क्लिक करूँ, फिर से देखो, फिर से यहाँ आ गया। तो ये जो है इस पे क्लिक कर दो तो आपको स्टूडेंट दिख जाएगा। एवरीवन इज इट क्लियर? अगर नहीं दिखे तो क्या करना है, या इस पे क्लिक करना है, हियर वी हैव ए कैन सी कॉर्नर, वी हैव ए साइन, वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट। सबको everyone, or you want me to repeat the steps again? Come on everyone. Yes. ये रहे, ठीक है, चलो फाइन। नाउ अभी ये आ गया ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे मुझे फील्ड क्रिएट करना है। तो फील्ड क्रिएट करने के लिए वी हैव टू गो फॉर एलिमेंट्स, यहाँ पे एक टैब है एलिमेंट्स, क्लिक ऑन दैट एलिमेंट्स टैब, और यहाँ पे आपके सारे फील्ड्स है जो भी आपको क्रिएट करने हैं। कोई कोडिंग नहीं करनी है गाइस, सी दिस ब्यूटीफुल फंक्शनैलिटी, नथिंग, आपको कोड ही नहीं करना है। अब मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए। नाम क्या होगा, नाम इज अ टेक्स्ट, इट्स अ टेक्स्ट फील्ड नेम, सो आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर। एक बॉक्स ओपन होगा, इसको डालोगे आप स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, और आई कैन प्रोवाइड कैंडिडेट नेम, दैट इज वेरी गुड, कैंडिडेट नेम, and I can provide the here what, let's take here we have 30 character का नाम होगा, and that should be a required field, star mark you have seen, required field क्या बोलते हैं, it's a asterisk sign, star mark field, it's a required field, जिसको जब तक आप fill नहीं करोगे allow नहीं करेगा। save it now, save it now, see add हो गया candidate name। वैसे ही अब क्या चाहिए आपको, कैंडिडेट का फोन नंबर, सो हियर वी हैव, चेक फोन है क्या, ऑफ कोर्स हियर वी हैव फोन, ड्रैग करो ड्रॉप करो phone, fine, save it, then we can provide email, drag it, and I can provide here email, save it, बस यही तो करना है। उसके बाद क्या करना है अपने को, उसका एड्रेस चाहिए, एड्रेस भी चाहिए आपको, यू कैन टेक द एड्रेस, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एरिया, यू कैन टेक द स्टूडेंट एड्रेस आल्सो, एड्रेस, सेव इट, फाइन। आपको चाहिए स्टूडेंट जो आ रहा है वो किस सिटी से है या मे बी किस स्टेट से है, आई कैन टेक द पिक लिस्ट, आई कैन प्रोवाइड सम ऑफ द स्टेट्स, I can provide some of the states, Indian states, so I can provide, let's say I can provide here state में I can provide some name, अभी के लिए मैं सब नहीं but कुछ नाम दे देता, let's take Maharashtra, I can take Madhya Pradesh, fine, I can take, let's take, so I have given 3 names, no what, that's fine, you can add multiple also, save it now। अगर आपको सिटी भी चाहिए, यू कैन टेक हियर अगेन वन मोर सेम पिक लिस्ट वैल्यू जो पिक करता है, सिटी यू कैन टेक इट, सिटी में यू कैन प्रोवाइड सम वैल्यूज, जो भी अपने स्टेट लिया यू कैन टेक द वैल्यू, लेट्स टेक, आई कैन टेक पुणे, आई कैन टेक मुंबई, आई कैन टेक लखनऊ, आई कैन से, आई कैन टेक हियर नासिक, फाइन, आई कैन टेक भोपाल, आई कैन टेक इंदौर, राइट, सो EAL, right? So like that, if you want, you can provide multiple cities also, no worry, चलेगा, fine, save it now। इसको भी सेव कर लिया मैंने। अभी वो बंदा जो आ रहा है, स्टूडेंट जो भी आएगा, वो ऑब्वियसली किसी न किसी कोर्स के लिए आएगा, so I can take here what, course, right? So I can provide here technology, technical course, I can take the technical course, I can take here what, Salesforce,
can take Salesforce, I can take Java, I can take mainframe, I can take AWS, I can take Python, I can take, let's take, I can take .NET, right? Multiple I can take it now, .NET. I can take GitHub, multiple technology. If you are providing in your institute, you can provide the name. Save it now. Save it now. Obviously बात है. And now we can take a field registration. अभी हो सकता है वो आया, उसने आया इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद वो बोला कि ठीक है मेरे को कोर्स करना है, आई विल पे फॉर द रजिस्ट्रेशन अमाउंट. तो रजिस्ट्रेशन क्या होगा? अमाउंट, इट्स ए मनी, so that will be a currency. So I can pull down the currency now. Currency, sorry, it's not currency, it's a registration. Registration amount. उसने कितना registration amount किया, that should also be tracked. Everything is tracked, right? I can take here 4 digits registration amount, and I can take a value, save it now. अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, don't worry. अभी इतना ही देखते हैं. Whatever the fields I have added here, it's added now. तो जितने भी हमने फील्ड ऐड किए वो ऑब्वियसली बात है कहाँ दिखने चाहिए मुझे? यहाँ स्टूडेंट पे. जब मैं स्टूडेंट के न्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दिखना चाहिए, बट वो नहीं दिख रहा है. तो गाइस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन. क्लाइंट पूछता है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आई हैव क्रिएटेड ऑल द फील्ड्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट. मैंने सब फील्ड्स को बना तो दिया है, बट स्टिल I cannot see all these fields on the UI. Can you tell me what is the reason? Anyone who want to guess? Come on. अगर आप guess करना चाहो तो don't worry. It's a गलत हो सही हो, it doesn't matter. See here, I can see only candidate name, but rest of the fields I cannot see. What is the reason behind this? Come on, if you can. So for that guys, remember कभी भी आप fields को यहाँ add करोगे तो वो directly आपको UI पे नहीं दिखते हैं. उसके लिए ये क्या है? इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका पेज खोला ना व्हाइट वाला, इसको हम बोलते हैं पेज लेआउट. ये क्या है? लेआउट है, एक पेज लेआउट है. इस पेज लेआउट पे हमें क्या होता है? ऐड करना होता है. और बहुत सिंपल है, कोई कोड नहीं है. वी जस्ट हैव टू, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है ना पेज लेआउट, व्यू पेज लेआउट. इसी पेज लेआउट पे जाके हमें बस ऐड कर लेना है. जब इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे है ना गियर आइकन, क्लिक ऑन दैट. यहाँ पे यू कैन सी व्यू पेज लेआउट. क्लिक ऑन दैट व्यू पेज लेआउट. क्लिक ऑन दैट व्यू पेज लेआउट. यहाँ पे आ गया ना स्टूडेंट का लेआउट आ गया. क्लिक करो स्टूडेंट के लेआउट पे. फाइन. एंड सी जो भी फील्ड्स है ना आपके सब यहाँ पे, सिटी, ईमेल, रजिस्ट्रेशन, फोन, स्टेट, टेक्निकल कोर्स, एड्रेस. सो व्हाट आई कैन टेक? चलो आई कैन टेक हियर व्हाट, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे ना कैंडिडेट नेम यहाँ पे, उसके बाद लेता हूँ कैंडिडेट की सिटी, यहाँ पे आएगी. कैंडिडेट का फोन, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं. ग्रीन आएगा तो इसको छोड़ दो. फाइन. रजिस्ट्रेशन अमाउंट मैं चाहता हूँ यहाँ सामने हो. जब ग्रीन आएगा ना, सी ग्रीन, लीव इट. फाइन. टेक्निकल कोर्स, आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर. फाइन. email, drag and drop it here. State, I can drag and drop it here. Fine. Address, I can drag and drop it here. सिटी क्या है? सिटी यहाँ है ना. सिटी को मुझे स्टेट के सामने रखना है. अभी देखो, इस सिटी को मुझे स्टेट के सामने यहाँ पे लाना है, यहाँ पे, बट वो आ ही नहीं रहा, वो ऊपर चला गया. स्टेट यहाँ है और सिटी ऊपर चला गया. मुझे सिटी को नीचे लाना है, तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा. ब्लैंक स्पेस को, इस ब्लैंक स्पेस को पुल करो, सिटी के ऊपर डाल दो. सिटी नीचे आ गया. सिटी को और नीचे लाना है, एक और ब्लैंक स्पेस डाल देंगे. ठीक आ गया. स्टेट के सामने सिटी आ गया. एवरीवन let me know अगर आपको, if you have any query what I'm doing currently. Come on, yes or no? It's just a drag and drop, कुछ नहीं है. That development is really very easy here in cloud. Come on, just give me a confirmation guys, everyone. No sir. Fine. So remember guys, जब भी आपने drag and drop कर लिया, आपका फॉर्मेट अब सही दिख रहा है. So remember every time जब भी आपने यहाँ पे पेज आउट में चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद यहाँ पे सेव करना मत भूलना. दैट इज मोस्ट ऑफ द डेवलपर यही भूल जाते हैं और बोलते हैं सर यूआई पे मैंने ऐड किया बट दिख नहीं रहा है. क्यों? ऐड तो करते हैं वो, बट यहाँ पे सेव नहीं करते. ऐड करने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन सेव नाउ. जब आप सेव पे क्लिक करोगे सो यू कैन सी इट इज सेव्ड. सेव्ड हो गया. सेव के बाद नाउ यू कैन गो देयर एंड रिफ्रेश योर पेज.
एंड आई होप सो अगर कैशे इशू नहीं आएगा तो इट शुड बी विजिबल देयर. लेट मी रिफ्रेश 2-3 times. I can go for the new and see there. Now here we have all details. I can take the candidate name. I can take the candidate phone, email, address. I can take it here. Here is the address. Which state he belongs to? I can. Here we have the state. Which city he belongs to? Here we have the city name. How much registration amount he has paid? Here we have. Technical courses. Here we have. What technical courses he is looking for? अब let's say fill कर लो आप डेटा कुछ करना है. Let's say I got a Gotham. Fine, I got a person with the name of Gotham. Fine, so he is looking for, so Gotham Singh. He is looking for a technical course. Which course is looking for? Let's take Salesforce course. Right, he has given his phone number. He has given his email address. Fine, he has given his email address. He has given his something address. He has given the address. Let's say I can provide only, let's say मैं provide करता हूँ पुणे. Fine, उसने बताया कि वो कहाँ से है. So he belongs to मध्य प्रदेश. So guys, what I have to do? If I have selected मध्य प्रदेश, यहाँ पे केवल यहाँ पे क्या आना चाहिए? केवल भोपाल एंड इंदौर आना चाहिए. But currently I can see all the cities. But don't worry, इसको भी हम फिक्स करेंगे. It's very easy बिना कोड के. So वो मध्य प्रदेश के कहाँ से है? भोपाल से. Right? He is interested in Salesforce course. So he has done the registration amount of, let's take 2000. Registration amount pay कर दिया. Fine. We can say, see अभी इसकी स्टूडेंट आईडी जनरेट नहीं हुई है. जैसे इसने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दिया, पे करने के बाद हमने इसके सारे डिटेल्स को ले लिया एंड वंस वी क्लिक ऑन द सेव, यू कैन सी हियर नाउ a registration ID is generated. A registration ID is generated and a data is captured here. If you can go for the student, you can see एक registration radical के लिए आ गया. अब जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो बार बार न्यू पे क्लिक करेगा and he can take more registration now. Second time, something here we have Aisha. Fine. She is looking for, let's take Java training. She has given her phone number. She has given her email address. Fine. She has given her address. Let's say she belongs to Mumbai. Right. She has given us, she is from Maharashtra. She belongs to, let's say, Pune city. Or sorry, it's a Mumbai city. Fine. Or suppose she has also paid about something 1500 registration amount. Fine. We can also save her. So we have now second registration. See. This is the registration number. See, now we have 2 registrations. So जैसे जैसे स्टूडेंट आपके मेडिकल में आएंगे वैसे वैसे उनका हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे. फाइन. अभी इसके अंदर हम और भी डिटेल ऐड करेंगे. डोंट वरी, अभी हमने जितना ऐड किया है ना, इट्स नॉट सफिशिएंट. अभी हम एक और सेक्शन बनाएंगे कि आपका अगर आप जावा के लिए जाते हो तो आपका ट्रेनर कौन होगा, अगर आप सेल्सफोर्स के लिए जाते हो तो आपका ट्रेनर कौन होगा, आपका ट्रेनिंग का कोर्स ड्यूरेशन कितना होगा, 3 months, 2 months, right, like that. All these things we are going to add. Fine. अभी आप देखो एवरीवन, सो हियर वी हैव रजिस्ट्रेशन अमाउंट. बट अभी अब क्लाइंट ने बोला राहुल हियर आई कैन सी द रजिस्ट्रेशन अमाउंट. दैट इज वेरी गुड, आई कैन सी द रजिस्ट्रेशन. बट ये रजिस्ट्रेशन किसका है, इसका फोन नंबर, कल को मुझे इस बंदे से के लिए, अब सपोज मान लो इस बंदे को फॉलो अप करना है कि कैन यू प्लीज पे द रिमेनिंग अमाउंट. सपोज इसने कुछ अमाउंट पे नहीं किया है, मुझे फॉलो अप करना है, तो आई हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड देन आई हैव टू चेक द फोन नंबर एंड देन आई हैव टू कॉल हर और कॉल हिम. So instead of that, what we are expecting कि यहीं पे मेरे पास फोन नंबर और उसका ईमेल एड्रेस दिख जाए. Of course we can do. What I can do now? I can just go और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा gear icon. यहाँ पे I can see here select fields to display. क्लिक करो इस पे. कौन कौन से फील्ड्स आपको शो करने हैं. अभी केवल आईडी दिख रहा है, मुझे चाहिए कैंडिडेट का नाम भी दिख जाए, उसका फोन भी दिख जाए. Do we have phone? Here we have the phone. Add it here. उसका ईमेल भी दिख जाए, उसने रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना पे किया वो भी दिख जाए. फाइन. और वो किस कोर्स के लिए ये भी दिख जाए. ये इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करना है. सेव इट नाउ. सेव इट नाउ. आ गया. ठीक है. इन सब चीजों, इट्स इंटरनेट इशू. इन सब चीजों के लिए क्लाइंट आपको 2-2 दिन 3-3 दिन के टाइम देते हैं. क्लाइंट को थोड़ी ना पता कि अब इस चीज के लिए उससे क्या 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 करना पड़ेगा. बट यू नो नाउ. सी यू कैन सी कि रजिस्ट्रेशन किसने किया है, उसका फोन नंबर क्या है, उसने कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया है और वो किस टेक्निकल कोर्स के लिए रजिस्टर्ड हुआ है. एवरी डिटेल हियर वी हैव नाउ.
सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज. हमने कोई कोड नहीं किया. यू कैन सी आई हैव डेवलप ए इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी फॉर रेडिकल, जो रेडिकल अभी यूज कर रही है. कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यूज करते हैं. आप कभी होटल्स में जाते हो, बड़े बड़े होटल्स में, वहां पे सारे के सारी एंट्री कहाँ होती है? आपकी ऐसी एप्लीकेशन में होती है. आपको आना चाहिए बनाना. इफ यू नो द अगर दे आर यूजिंग if they are using this Salesforce database, you can develop them. You can develop all this functionality for them. Okay, so it's just the initial functionality that we have seen. Lots of more functionality we are going to see now. Okay, everyone. Chalo, let me know if you have any query for today's session, because आज के लिए इतना काफी है. And all of you have to do the same practical, and you have to share your screenshot in the WhatsApp group. I'm expecting, guys. Everyone. Sir, Come on. actually, I have a query. Tell me. So I am like doing it side by side. So when I'm clicking on the list view controls, it's not showing me anything. Like all the options are closed. Only I can click on new. So why is it happening? कहाँ पे? मेरे को बता, आप कौन से ऑब्जेक्ट पे हो? Sir, student पे you students. हाँ. So I created two students now. Right. And when I like click on list view controls, Right. like then I'm Where not getting any where is option. this view control? This one. Yeah. हाँ, क्योंकि आप recent में हो. You have to first go for all. Okay, that is fine. You have to first go for all, and then you have to click on this. ठीक है? Then you can see now. Okay, sir. Thank you. Right? Yes. चलो. Anything else, anyone? पूछो guys. कोई भी doubt हो ना? Here you can ask everything. Come on. चलो. Any query, anyone? Hello, sir. Yeah. So as we see that for custom objects, we went for a custom object. Sorry, name, right? you are not audible properly. Can you please repeat again your Hello, question? sir. Yeah. As we selected those standard objects, can we customize them also? Of course we can. उसको भी हम आगे सीखेंगे. जो custom object है ना, इसमें हमें कुछ customization करना होगा ना. Of course we can do. Everything we can do. हम कुछ भी इसमें हटा सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं. Okay. Don't worry. इसको भी हम देखेंगे आगे कि how standard functionality will be customized. That we'll see. Step by step we'll do everything. Don't worry. Okay. चलो. Any other query, guys? Okay, no queries. So guys, honestly what I'm saying, please go and see. ये practical करने में आपको आधा घंटा और लगेगा. So I'm expecting everyone screenshots in WhatsApp group, और जो भी notes है, let me post this notes. इस notes को मैं अभी के अभी डाल देता हूँ in your WhatsApp group, ताकि snipping. Guys, so let me take a snap and let me add it to your WhatsApp group right away. Yes, fine. तो मैंने आपको नोट शेयर कर दिया. इसके अलावा मैं कुछ और आपको नोट शेयर करूंगा अभी. ठीक है? ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, एवरीथिंग आई विल शेयर वंस अगेन. तो मैं आपको 1-2 घंटे में उसको भी शेयर कर देता हूँ. ठीक है? इसके अलावा कुछ और कुछ गाइस, एनीवन, एनी क्वेरी? हेलो सर, आवाज आ रही है? फाइन. सो गाइस, ठीक है, प्रैक्टिकल करो एंड शेयर योर स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप, तो सो दैट आई कैन आल्सो सी दैट यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल. या So, hello. टेल मी. यस. Yeah. We are doing classes alternatively, no? On Only for alternative. this week, only for this week, because एक जो Okay. बैच है ना, वो भी करंट, अभी उसका बस एक सेशन और बचा हुआ है जो कल कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्टली. नेक्स्ट Okay, वीक से okay. विल गो मंडे टू फ्राइडे. और मैंने इसलिए Yeah. भी अभी अल्टरनेट रखा है कि बिकॉज आपको थोड़ा सा आप इसके यूज टू हो जाओ प्रैक्टिकल के. Yeah, sure. Thank you. हेलो यस, टेल मी. आई थिंक समवन इज सेइंग. संकेत. या जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, अब बोलो. सर एक्चुअली आप सिखा रहे हैं तभी हमें प्रैक्टिस करना होगा क्या साइड बाय साइड? नहीं, साइड बाय साइड नहीं गाइस. ये जो मैंने सिखाया ना, फिर इसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है आपकी, जहां से आप लॉगिन करते हो ना LMS पे, वहीं पे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है. तो गाइस, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, पहली बात कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ तो आप अपने प्रैक्टिकल पे फोकस मत रहो, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे व्हाट कॉन्सेप्ट आई एम सेइंग, राइट? बिकॉज सेम वीडियो फिर से अवेलेबल है. आप फिर से आधे घंटे बैठ के वो वीडियो दोबारा देख सकते हो एंड यू कैन डू द प्रैक्टिकल.
ठीक है, अच्छा, जब आप सिखाते हो तब सिर्फ देखना है और केवल प्रैक्टिकल देखो बाद और में करना समझो। है। हाँ, और कोई डाउट है पूछो। उसके बाद जब ओके। क्लास ओवर हो गया, उसके बाद आप मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दो, उस रिकॉर्डिंग को फिर से देखिए, तब पैरेलली डेवलप करो। दैट इज द बेस्ट वे आई एम ओके सेइंग। सर। ठीक है, Okay. नहीं तो आप क्या करो, Thank you, प्रैक्टिकल करने में रहोगे ना, तो मैं जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ नहीं पाओगे, आप प्रैक्टिकल करने में क्लिक करने में लगे रहोगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है that's why सर। don't worry, every recording is available on there, you can just go and just check it once again. ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो सर कल क्लास है या फिर फ्राइडे को है? नाउ इट्स फ्राइडे, ऑलराइट, दिस वीक अल्टरनेट रहेगा, तो कल एवरीवन स्क्रीनशॉट आप शेयर करो, तब तक प्रैक्टिकल करो। ठीक है, श्योर, चलो, थैंक्स ऑल देन, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।